Hello, hello. This is Mranal Patil, taking privilege to tell something about you. Very eagerly want to tell something. आज हम अगर देखा जाए, इंडिया में देखा जाए कि हमारी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या है. अगर सबसे ज़्यादा एक यंगस्टर्स की प्रॉब्लम देखी जाए तो यंगस्टर्स को सबसे ज़्यादा चाहिए क्या, या फिर विल नॉट ओनली टॉक अबाउट यंगस्टर्स. अगर हम इंडिया में सभी के लिए देखें तो सबसे ज़्यादा सबको चाहिए क्या? दे ओनली वांट मनी, सिर्फ पैसा. उन्हें लगता है कि पैसे के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल. वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड विदाउट मनी. मीन्स these are some beliefs which I want to break off the youngsters so that when they grow up they do not pass the same message to their childs or to their childrens or whom they meet. So the youngsters, they always think that they find some shortcut, they find the shortest way towards success, or they want just a shortcut to reach a point. But remember that there's no shortcut in reaching anything, because if you have two roads, means if you are standing on a diversion, एक long cut होता है और एक shortcut होता है. So a shortcut always has a catch. Okay, remember a thing that winners don't do different things, they just do things differently. I repeat it, winner don't do different things, they do things differently. Means the winner will also walk from the same long cut, but he will walk in a different way. Means his thinking will be exactly different. The person who is cursing him that he took the long cut, but he will thank him that I took the long cut and I will reach there exactly. So that's only a difference between a winner and a loser. Okay, now this is one belief which we have to break, and now the second belief is, it's also related to money as well. So, अगर मैं आपको अभी पूछूं कि हाई क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास में डिफरेंस बताओ, तो हमारा सबका आंसर यही होगा. मेरा भी अभी तक इससे पहले यही आंसर होता था कि जिसका बैंक बैलेंस ज़्यादा वो हाई क्लास, जिसका बैंक बैलेंस कम लो क्लास, एंड द पर्सन हु लिव्स इन बिटवीन द हाई क्लास एंड लो क्लास, ही बिलोंग्स टू मिडिल क्लास. दैट इज व्हाट आई बिलोंग टिल नाउ. मीन्स आई वाज बिलीविंग इट, बट when I came to know the reality, it is not that. We have to not judge any person according to his bank balance and all. Means, I'll tell you a story. Just try to relate yourself with it. हुआ क्या था ना, जब गॉड ने अर्थ बनाया था, दुनिया बनाई थी, उनका एक बहुत अच्छा एंजल हुआ करता था जिसका नाम था लूसीफर. गॉड हर चीज़ उनसे पूछ कर ही करते थे. मीन्स हर चीज़ लूसीफर से सजेशंस लेते थे कि हमें ये करना चाहिए, हमें इस तरीके से करना चाहिए एंड ऑल. गॉड ने 5 दिन में सब कुछ बना लिया, झाड़ बना लिए, पेड़ बना लिए, सब कुछ, फॉरेस्ट, रिवर, ओशंस, एवरीथिंग, एनिमल्स एंड ऑल. एंड 6th day, when he was about to make us, when he was about to make humans, he didn't ask Lucifer, because Lucifer was not at his place, so that he could go and consult him. So he decided, means God decided, that I will make human, which are us. So when Lucifer came to know that we are been made by God without asking him or without consulting with him, so he got angry on God. He went to God and asked him, means he was cursing him, literally was cursing him, कि आपने मुझे बताया नहीं, ऐसा वैसा, मैं आपका इतना important हूँ, इतना ये हूँ and all. बहुत कुछ उन्होंने बोला. Guys, remember, if you are the king of some area, before taking any decisions, will you ask somebody? Why the hell you will ask someone? So God did the same thing. As he was the mighty power, so he didn't ask him. So they had a huge fight between God and Lucifer. So God ordered Lucifer to go out of heaven. And that's how the hell was created by Lucifer. As Lucifer was also having powers. He was also having powers, but not as mighty as God. God was more mighty than them. God was the most proudest thing, or the thing on which God was having the most proud, that we humans, which he has created. The first human on the earth, they're Adam and Eve. So first of all, they were having a direct interaction with God. जब वो उन्हें एक रखा गया था एक जंगल में, वो थे एक जंगल में, एक सेंटर. In the center of the jungle there was a tree, which God has advised them that you have never to eat this fruit. If you will eat this fruit, you will die.
as Adam and Eve were made by God, they have to obey him, and they were obeying him. So, and you could not believe that the tree was so attractive, means so eye-catching, that anybody can go and eat that fruit at any time. So, then as Lucifer was being thrown out of the heaven, he went out the heaven to hell and created hell. He went out with some of his friends. Means as the friends are there, अगर हम कोई चीज छोड़ के आते तो हमारे पीछे पीछे हमारे फ्रेंड्स आते, तो उसके भी कुछ फ्रेंड्स थे लूसीफर के. So he went. So Lucifer took the privilege, as I'm taking the privilege to talk to you. So Lucifer also took the privilege to talk to Adam and Eve. He thought that consulting Adam will be hard, so he went to Eve. As women get consult more easily, means they get convinced more easily, so he went to Eve. At midnight, he came like a snake, means he came in the body of a snake and asked Eve to take this, means to have the fruit, it's so good and all. So she had the fruit, means he was only having the view कि जो घमंड है भगवान का, वो घमंड तोड़ना है. वो घमंड कैसे तोड़ता था कि अगर एडम एंड ईव उनको ओबे करना छोड़ देते. भगवान का प्राउडेस्ट मोमेंट था, भगवान सिर्फ अच्छाई देख रहे थे, इनको अच्छी तरीके से रखा गया था, और सैटन मीन्स लूसीफर क्या कर रहा था, उनको उनसे दूर ले जा रहा था. अगर आप इस समय मैं आपको पूछूं कि हु बिलोंग्स टू हाई क्लास एंड हु बिलोंग्स टू लो क्लास, आई थिंक योर आंसर वुड बी गॉड बिलोंग्स टू हाई क्लास. एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग इट क्लियर दैट गॉड के पास उनमें पैसा नहीं था. हमने गॉड को हाई क्लास इसीलिए बोला क्योंकि God's thoughts were much more powerful and much more better than Saturn, that is Lucifer. So before judging anybody, we should have a note that what he wants to do and what he thinks. Means एक और एग्जांपल ले लो. एक आदमी है जो एक साल का 1 करोड़ रुपए कमाता है, और एक आदमी है जो एक साल का 1 लाख रुपए कमाता है. लेकिन जो आदमी 1 साल का 1 लाख रुपए कमाता है, वो हर साल 30,000 रुपीज डोनेट करता है एक चैरिटी ट्रस्ट को, और जो 1 करोड़ रुपए कमाता है वो 1 रुपए भी चैरिटी को नहीं देता. मीन्स कीपिंग योर थिंग, जो आपने मेहनत से कमाई है, इट इज गुड, पर आप उतना यूज करो जितना आपको अच्छे से यूज करना है, आप उतना अच्छे से यूज करो, अच्छे से घर में रहो, बड़ी से बड़ी गाड़ी में घूमो, सब कुछ, लेकिन जितना बच जाता है उतना तो आगे करो. अब वो आदमी तो आगे कुछ कर ही नहीं रहा था, तो इसमें हाई क्लास और लो क्लास कौन हुआ? जो आदमी चैरिटी कर रहा है वो हाई क्लास में जाएगा, जो आदमी कुछ नहीं कर रहा है, बस बैठ के खुद खा रहा है, उसे लगता है कि मैंने कमा लिया, मैं इस दुनिया का सबसे महान आदमी हूं, वो हाई क्लास. गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट वी हैव टू डू? सो दिस इज वन मोर बिलीफ विच वी हैव टू ब्रेक. एंड देन कम्स अवर वन मोर बिलीफ. मीन्स हमने हर जगह से सुना है, पढ़ा है कि बीइंग पॉजिटिव मीन्स थिंकिंग पॉजिटिवली. अगर हम कोई भी चीज को पॉजिटिवली देखते हैं या कोई भी चीज को पॉजिटिवली सोचते हैं, तो वो चीज आराम से होती है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, आई विल आस्क यू टू जस्ट चेंज दिस बिलीफ. मीन्स आई एम नॉट आस्किंग यू टू डोंट थिंक पॉजिटिवली, मीन्स नॉट ओनली थिंक नेगेटिव, बट आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर डूइंग अ थिंग thinking positive, it is good. It is well and good if you are thinking positive, but as well as you have to see the negative side of it. Let me give you an example and make it very clear that जब हमारी एग्जाम्स थी, हमारे एग्जाम्स को 2 दिन का पीएल मिला था. 2 दिन बाद, जैसे आज अगर मैं पढ़ने बैठा तो 2 दिन बाद मेरा पेपर है. रात में मैं पढ़ने बैठा, इलेक्ट्रिसिटी चली गई. देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी. सो आई थॉट इट विल कम विद इन 1 hour. मीन्स आई वाज थिंकिंग पॉजिटिव दैट इट विल कम. बट आफ्टर an hour it didn't came. I thought of waiting 1 more hour. It will come. I was eagerly waiting. Means I was thinking positively. I was positive with my thoughts that it will come. Nothing happened. 4 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई. मैंने अपने 4 घंटे वेस्ट कर दिए किस चीज में? सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग में. ओनली ऑफ थिंकिंग पॉजिटिवली मैंने अपने 4 घंटे वेस्ट कर दिए. अगर मैं ये 4 घंटे वेस्ट नहीं करता तो हो सकता था जो मेरा पेपर जिस तरीके से गया उससे अच्छा जाता. मीन्स अगर मैंने उस समय थोड़ी नेगेटिविटी देखी रहती कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो मैं क्या करूँगा, तो शायद मैं उसी समय पढ़ने बैठा रहता. लेकिन बीइंग पॉजिटिव, आई थॉट इट विल कम एंड इट डिडंट कम. सो दैट इज
क्योंकि हमने ये चीज़ भी हमेशा सुनी है लेकिन इसे कभी फॉलो नहीं किया है। हमने ये हमेशा सुना है कि अगर किसी भी पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है तो उसे उसके दिमाग से सोचना पड़ता है, उसे चोर जैसा सोचना पड़ता है। मीन्स अगर पुलिस एक चोर को पकड़ने की प्लानिंग कर रही है, उन्होंने सारे उसका बंदोबस्त कर दिया, मस्त बंदोबस्त कर दिया कि बस अब हम आज इसे पकड़ने वाले हैं। अगर वो सिर्फ यही सोचते कि हाँ हमने इतना बंदोबस्त कर दिया, यहाँ से भाग ही नहीं सकता। और अगर उन्होंने ऐसा सोचा कि हमने इतना तो कर दिया है लेकिन फिर भी अगर ये हमें तोड़कर भाग गया तो क्या होगा, तो शायद वो और उसके आगे सिक्योरिटी लगा पाए। गेटिंग माई पॉइंट? अगर उन्होंने उस तरीके से सोचा, मीन्स इफ दे विल सी द नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, दे विल कैच हिम डेफिनेटली। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी नेगेटिवली, मीन्स बी फुल्ली नेगेटिव। आई एम आस्किंग यू ओनली टू सी द नेगेटिव साइड ऑफ the work which you are doing. As well as positive, you should also see the negative side of it. And you should be a person, means seeing a negative side, you should get a positive result. Means almost your motive is to get positive result. But when you will see both the sides, as positive as well as negative, then only you will get the positive result. So this is one more thought which we have to break, or which we have to change. Okay, getting my point? We have to only change, and it will not be changed suddenly. It will take some time. That is, and we will give the time. Now, one more thing. हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर हम थोड़े भी कंफ्यूज्ड होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम जाकर किसी भी बड़े आदमी से बोले, हम जिन पे फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, हम उनसे जाकर पूछते हैं कि सर आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम, सो हाउ कुड आई कम अप विथ इट। मीन्स अगर हमें कॉलेज में एडमिशन लेना तो हम पूछते हैं कि हम यहाँ जाएं या यहाँ जाएं। टेकिंग एडवाइस इज वेरी गुड, बट टेकिंग एडवाइस and not taking the initiative is a different thing. Means you are taking the advice from the whole world, but not taking the initiative. You are waiting for them to take initiative for you, so it will not happen. Your initiative, you have to take it yourself. Getting my point? Means इसको भी आपको एक एग्जाम्पल के साथ में क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने दो बाइक्स रख दूँ। एक बाइक सबका, दोनों का एवरेज सेम है, माइलेज सेम है, कॉस्ट सेम है, एवरीथिंग। एक बाइक में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एक बाइक में सेल्फ स्टार्ट है और एक बाइक में सेल्फ स्टार्ट नहीं है। विच बाइक विल यू चूज? डोंट से दैट फॉर एक्सरसाइज यू विल चूज द किक वन। दैट इज नॉट द थिंग। Exactly, everybody will choose the self starter, the bike which has the self start. So compare your life to it, compare your any multinational company to it. A person with a self starter always be acceptable in this world. A person who depends on others will not be accepted by the world. So take the initiative to anything. Don't think of the world that what they will think of you, because if you will also think the same, then what the world will think of you. Getting it? हमें सिर्फ इनिशिएटिव लेना है। आप एक बार इनिशिएटिव लो, आपके पीछे 5 लोग और आएंगे। क्योंकि होता क्या है, एक और स्टोरी आपको बताता हूँ। एक बार ना सर्कस, एक मस्त सर्कस था। वो सर्कस में 5 शेर थे। हर समय उनका खेल चलता था, हर जगह पे वो लोग हर कंट्रीज में जाके अपना खेल दिखाते थे। अच्छी इनकम हो रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, वो लोग एक बार उनमें इतना इकोनॉमिकल क्राइसिस आया कि वो लोग शेर को फीड नहीं कर पा रहे थे। अभी तक शेर को उनका गोश्त अपने आप काट कर मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, तो उन्हें कुछ करना ही नहीं था। पर कुछ समय ऐसा आया कि शेर को जाना पड़ा। मीन्स शेर को जंगल में छोड़ने की नौबत आ गई। तो हुआ क्या कि शेर को जब इन लोगों ने जंगल में छोड़ा और उसके 3 दिन बाद जब फिर ये लोग जंगल लौटे, तो शेर का शिकार कुछ जंगली कुत्तों ने किया था। अब जो खुद शिकार के लिए जाना जाता है शेर, उसका खुद का शिकार होना, isn't it a very ridiculous thing? जो खुद शिकार करने के लिए मशहूर है, वो खुद शिकार बन गया। और किसका? जंगली कुत्तों का, जो शेर से देख कर कांपना चाहिए था। ये हुआ क्यों? बिकॉज शेर पे पास जो पावर थी, वो पावर उनको कभी यूज ही नहीं करने मिली।
उन्होंने कभी वो पावर को यूज ही नहीं किया, वो सर्कस में थे, अभी तक उनको स्पून फीडिंग हो रही थी, जो हमें भी अभी तक हो रही है। वी आर स्पून फीडिंग, हमें सिर्फ स्पून फीडिंग मिल रही है। वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर फैमिली, ऑन आवर फ्रेंड्स, और एनी अदर थिंग, फॉर एनी डिसीजन, फॉर इनिशिएटिव, फॉर एनीथिंग यू कैन से। और जो जंगली कुत्ते जिनकी पेशा नहीं था शिकार करना, उनको एटमॉस्फेयर ने वैसे बना दिया कि उन्होंने एक माइटी पावर का भी शिकार कर लिया। सो वी हैव टू गेट इट, वी हैव टू नॉट बी स्पून फीडेड। मीन्स हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि ये जब करेंगे तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वी हैव टू नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस इज वन मोर बिलीफ व्हिच वी हैव टू चेंज इन। अब एक लास्ट बात, जो इस सेशन की लास्ट बात होगी, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक कंपनीज में और हर एक चीज में दो लोग होते हैं, ग्रास रूटर्स एंड पैराशूटर्स। ग्रास रूटर्स आर वो जो नीचे से शुरुआत करते हैं, और पैराशूटर्स आर वो जो ऊपर से शुरुआत करते हैं। अगर आपको मैं सीधा जाके टॉप पॉइंट पे छोड़ दूं, एक आपको एरोप्लेन ने बिठा दिया, ऊपर से छोड़ दिया पैराशूट के साथ, क्या होगा? आपको वहां रख दिया। और एक आदमी है जो यहीं पर है, जो एरोप्लेन में जाने की प्लानिंग कर रहा है, उसमें डिफरेंस क्या होगा? The person with a parachute will always come down. Means if you are going or planning to be a parachuter, you will always come down. And a person who is a grass rooter, he will always go up. Means we have not to think a bigger plan. हमें शुरुआत छोटे चीज से करनी चाहिए। अगर हम भी सीधा एकदम बड़े अचीवमेंट की तरफ सोचेंगे तो होगा क्या? हम सिर्फ नीचे गिरेंगे। पैराशूट के साथ हम सिर्फ नीचे गिरेंगे। हम बचेंगे जरूर, लेकिन हम सिर्फ नीचे आएंगे। और अगर हम ग्रास रूटर्स है, हम एक छोटी सी चीज को लेकर ऊपर जा रहे हैं, तो हम हमेशा ऊपर जाएंगे। डेफिनेटली विल गो अप। लास्टली मैं बस जो यंगस्टर्स है आज के, मैं उनको सिर्फ यही बताना चाहूंगा, यही सब हमारे लालच की वजह से कुछ कंपनीज है, आई कॉल देम चेन रिएक्शन कंपनीज, they are taking advantage of us. वो हमें लालच दिखा रहे हैं कि we can earn a lot of money by helping them or working with them. Exactly, they are not helping us. They are helping themselves. They are creating their success. That is their success. They tell you that if you do this, you can buy a car and you will be successful. Guys, success is defined differently by different persons. Means and different things, you have different priorities and different person think differently. So how success can be a one thing? सक्सेस सबके लिए एक कैसी हो सकती है? जब सब लोग सोचते अलग है तो सक्सेस एक कैसी होगी? वो जो सक्सेस आपको बता रहे हैं वो आपकी सक्सेस नहीं है, वो उनकी सक्सेस है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसी और की सक्सेस जीनी है या खुद की सक्सेस जीनी है। गेटिंग इट? अगर आप दूसरों की सक्सेस जियोगे और आप एक महीने का 50,000 भी कमा रहे हो, फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। अगर आप खुद की सक्सेस जी रहे हो, अगर आपकी खुद की सक्सेस किसी को हेल्प करना और आप वो कर रहे हो, आप मानते हो कि आप उसमें सक्सेसफुल हो, अगर आप 30,000 बोलो या फिर 20,000 भी आप एक महीने का कमा रहे हो, तो आप सेटिस्फाइड हो, एंड दैट इज रियल सक्सेस फॉर यू, एंड दैट व्हाट you want it in your life. Getting it? हम हमेशा सोचते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, why it is not developed till now. हम इसके लिए हमेशा पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं कि पॉलिटिशियंस ऊपर बैठकर मस्त पैसा खा रहे हैं, इसलिए हमारा कंट्री आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन उन्होंने वहां पहुंचने तक भी बहुत स्ट्रगल किया है, और एग्जैक्टली वो जो हम जो सोचते वो होता डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे आंखों में वो चश्मे लगा के रखे हैं। हम उनको सिर्फ वही देख रहे हैं जो वो नहीं है। हम लोग तो सिर्फ यही सोचते कि कोई भी पॉलिटिशियन आ जाए, ही इज करप्ट। एग्जैक्टली हम क्या करते हैं? हम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर क्या करते हैं? हम सिर्फ जॉब की तरफ जाते हैं। अब जॉब पे जाने के बाद हम वो जॉब को मन लगा कर नहीं करते हैं, क्योंकि हम वो जॉब को सिर्फ अर्निंग के लिए कर रहे हैं। सो
दिस इज़ वन मोर बिलीव कि अगर हम कोई भी जॉब एक लर्निंग के प्रोसेस से करें, कि अगर आप कोई भी कंपनी में जा रहे हो और आप उसको सीखना चाहते हो, ईगरली सीखना चाहते हो, मीन्स यू ईगरली वांट टू लर्न समथिंग, यू आर लर्निंग एज वेल एज अर्निंग इन द कंपनी, you will be satisfied and you will not believe that what you are doing means the results will be wonderful. You'll not believe on yourself the things which you are doing it yourself or not. Getting it? So कोई भी चीज़ को करने से पहले अपना इंटरेस्ट उसमें जगाओ. कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसमें अपना इंटरेस्ट जगाओगे तो आप अपने आप वो चीज़ को इजीली करोगे. Easily it will be made for you. So guys, saying these words, this is Mrinal Patil saying goodbye to you. Thank you.